آج کا عنوان ہے کلام، دعا اور روزے اور شکر گزاری کے ذریعے رہائی۔ کس کے لیے رہائی؟ دعا، کلام، روزہ اور شکر گزاری کے ساتھ رہائی۔ خدا ہمیں رہائی ضرور دیتا ہے، لیکن رہا ہونے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے، رہائی لینے کا بھی کوئی سلیقہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے رہائی مل سکتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں اس رہائی کے لیے میں کہتا ہوں کہ دھاگے کے 3 ڈور ہوتے ہیں، دعا، کلام اور روزہ۔ اگر ان تینوں کو باندھ جائے تو ایک ڈور بن جاتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے اور اس ڈور کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ تاریخی کام ہے، یاد رکھیے، دعا، کلام اور روزے نے تاریخیں بدل دی، کیلنڈر بھی تبدیل کر دیتا ہے، ملک، قوموں، حکومتیں بھی یہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا، کلام اور روزہ، جب کوئی بھی دعا کام نہ کرے تو پھر یہ 3 دھاگے آپ کی زندگی کے اندر فتح لے کر آ سکتے ہیں۔ دعا کے وسیلے سے تاریخ بھی بدلتی ہے، روزہ اپنے ساتھ رہائی اور میں کہتا ہوں کہ فتح لے کر آتا ہے۔ روزہ خدا کی پچھلی برسات کے لیے تیاری کی روح بھی دیتا ہے، روزے کے وسیلے سے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جب ہم کلام اور دعا کریں تو پھر کیا رکھ سکتے ہیں؟ بنیاد، کسی کام کو کرنے کے لیے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ ایسی پاور ہے خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے کلام، دعا اور روزے کی بنیاد ہے۔ روزہ نہ صرف یسوع کی تعلیم کا حصہ ہے بلکہ اس کی اپنی شخصی مثال سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ روزہ کے وسیلے حکومتیں تبدیل کی جاتی ہیں۔ یسوع نے جب بپتسمہ پایا تو یسوع کو روح یا بان میں لے گیا، کس کے لیے؟ کہ ہمارے لیے رہائی لے کر آئے، ہمارے لیے بحالی لے کر آئے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب 1 سے لے کر 4 تک کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 1 سے 4 آیت تک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب پورے دن ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ روزہ ہمارے لیے بنائی لے کر آتا ہے اور رہائی بھی لے کر آتا ہے۔ یہ روزے کے وسیلے سے ایک شیڈول ہے۔ بعض دفعہ ہمیں جو ہے روزے کا شیڈول جو ہے وہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا اور روزہ رکھنا چاہیے اس کے اوقات کے بارے میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کے جو ٹائم ہے، اوقات ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ شام سے شام تک روزہ کب ہوتا ہے؟ شام سے اگلی شام تک۔ یہ عبادت اور اس کی
23 बाब के अंदर और 26 आयत के अंदर, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एक बनी इसराइल ने जो रोजा रखा, सुबह से शाम, शमूएल 2 और उसके 1 बाब से 11 में इसका जिक्र है। और तीसरा रोजा जो आस्था ने रखा, 3 दिन का रोजा उसने रखा। फिर शमूएल 12 में भी दाऊद ने जो 7 दिन का रोजा रखा। खरूज के अंदर मूसा ने 40 दिन का रखा और एलिया ने 40 दिन का रखा। मत्ती की इंजील 4 बाब 2 के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रख के मुद्दत नहीं बल्कि रोजादार की बातनी हालत में निगाह की। खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का, ये कलाम मुकद्दस में जो रोजा रखने की मैंने आपको तरतीब बताई है कि रोजा 8 पहर की है, शाम से शाम, और अगर आप सुबह भी रखते हैं तो फिर भी सुबह तक, लेकिन रोजा यही रोजा है, 2 घंटे वाला कोई रोजा नहीं है। अगर रोजा रख रहे हैं तो फिर यही रोजा जो कलाम के अंदर जिसकी तस्दीक मैं आपके सामने कर रहा हूँ, यही रोजा है। और हमें इसी तरह ही रोजा रखना चाहिए। मैं रोजे के ताल्लुक से क्यों आज बात करने वाला हूं कि पिछले हफ्ते के अंदर मुझे इसी दुआ, कलाम और रोजा के वसीले से मुझे एक बेटी ने अपनी गवाही दी। कुछ 1 साल पहले जब उसने दरख्वास्त दी कि मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, लेकिन कई माह हो गए हैं और मुझे पाकिस्तान आने के लिए मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। मैंने उससे कहा कि बेटा जैसे आस्था ने रोज़ा रखा, तू भी रोज़ा रख और देख चमत्कार खुदा तेरी जिंदगी में करेगा। आस्था की किताब को पढ़। उसने कहा मैंने पढ़ी नहीं। मैं कहता फिर अब पढ़ेगी तो तू उसके जलाल को देखेगी। हालेलुया। और उसने आस्था की किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने उस पर अमल किया और खुदा ने 1 महीने के अंदर अंदर उसे वीजा दे दिया और पाकिस्तान आके अपने बहन भाई को मिली और बड़ी खुश हुई। ये रिहाई कैसे मिलती है? जब हम अमल करते हैं, हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, तो खुदा भी छोड़ देता है। कहते अच्छा ठीक है, काला सुनते लिया है, लेकिन मैंने कहा नहीं कर, आप पढ़। खुदा ने उसे फतह से पढ़कर गलबा दिया। आज फिर 3-4 माह के बाद उसे कहा कि मुझे एक उलझन है, परेशानी है मेरी लाइफ के अंदर। मैं चाहती हूँ कि खुदावन क्या करे, मुझे रिहाई दे। मैं रिहाई चाहती हूँ। मैंने कहा क्या कि पहला तजर्बा तेरे पास है? खुदा ने फिर क्या तू फिर कलाम, दुआ और रोजे के अंदर जा तो फिर तू उसका चमत्कार देगी। कहने की क्या ऐसा होगा? मैं कहा हाँ होगा, तू कर, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। मेरी कलीसिया लोग दुआ करेंगे, हम सब तेरे लिए रोजा रखेंगे और क्या होगा कि तुझे खुदा रिहाई देगा। और पिछले जुमे उसका फोन आया कि कहने लगी अंकल जी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जो 4-5 साल से मुझे रिहाई नहीं मिल रही वो दिनों के बीच मिल रही। दिनों बीच फड़दा उदा हाथ जड़ा बाँव दी फड़े, तेरी बाँव फाड़ ले, खुदा उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। और दिनों के अंदर अंदर लेकिन 4-5 साल में मेरा काम नहीं हुआ, वो दिनों के अंदर हो गया। हालेलुया। तो उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। उसके जलाल आज मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जो तजर्बात खुदावन हमें देता है दुआ, कलाम और रोजे के वसीले से शेयर करना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी कहीं आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा है तो फिर इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। ये तो बड़ा हथियार कोई नहीं जी रिहाई के लिए। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम आस्तर की किताब पढ़ेंगे क्योंकि उसके वसीले से उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने बादशाह किए, बड़ा काम किया।
आज निकाल लिया आस्तर इसका 4 बाब 12 से 14 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिए गौर से। कलाम में यूं लिखा है कि उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने मुझसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में यह ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोश रही तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत में पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास से ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सुसर में जितने यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। देखिए एक बेटे की बहादुरी देखें। कलाम वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रोजा रखने के ताल्लुक से जब बनी इसराइल कौम असीरी में जाने को थी, कैद में जाने को थी, कत्ल होने वाली थी, तो एक बाप ने और एक बेटी ने कुर्बानी रखी अपने कौम को बचाने के लिए। बाप अपनी बेटी को कह रहा है कि बेटी देख, क्या जाने कि खुदा ने मुझे और तुझे अपनी कौम को बचाने के लिए ही चुना है और तुझे महल तक पहुंचाया है। और बेटी को साथ उसने समझा भी दिया, और जो कलाम के अंदर लिखा है बाप अपनी बेटी को मैं साफ लफ्ज में कहूं तो उसने अपनी बेटी को तड़ी लगा दी। तो बेटी हूं तू चुप रही कि ये ना समझना कि तू महल के अंदर बची रहे, तू भी नहीं बच सकती, क्योंकि ये तो खुदा का काम है जो खुदा तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कहता हूं बेटियों को कि अगर आपको खुदा यहां पर लेकर आया तो ये ना समझो कि अगर आपने अपने घर को या अपनी कौम को नहीं बचाया तो फिर कलाम तो ऐसा ही है। कहते तू भी ना समझी कि तू भी बची रहेगी। अगर बेटी बेटियां भी है तो वो भी नहीं बची रहेगी अगर वो खिदमत का काम यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि किसने कहा? बाप ने अपनी बेटी से कहा इस बात के लिए कि बेटी तुझे अब ये काम करना है, इसलिए कि बाप जानता था कि मेरी बेटी ये काम कर सकती है। उसे मालूम था कि मेरा बाप रोजे रखता है, उसे मालूम था कि मेरा बाप दुआ करता है, मेरा बाप कलाम सुना सकता है। बाप ने इसीलिए बेटी से कहा कि तू जानती है, और वो बाप भी जानता था कि मेरी बेटी के पास ये तजर्बा है, वो रोजा रखना चाहती है, वो रोजे रखती रही है। लेकिन आज उस इम्तिहान का कड़ी वक्त आ गया, उस कुर्बानी का वो वक्त आ गया, कुर्बानी चढ़ाने का वक्त वो आ गया, और तब बाप ने बेटी से कहा क्या होने वक्त थी। अगर अच्छी तू चुप रही तो फिर रहाई फिर आएगी, पर रहाई कहीं और से आ जाएगी। तू नहीं करेगी मेरी बेटी तो खुदा किसी और बेटी को खड़ा कर देगा, वो करेगा। लेकिन
खुदा अपना काम कभी नहीं रोकता। याद रखिए, खादम पैदा होते मर जाते हैं, लेकिन खुदा का काम जारी रहता है। वो काम कभी नहीं रुकता। एक नहीं, दूसरा, हर नन्वा के अंदर अगर कोई और नहीं कहेगा तो फिर कोई और करेगा। यूना नहीं कहेगा, कोई और करेगा। एलिया नहीं कहेगा, कोई और करेगा। मूसा नहीं कहेगा, कोई और करेगा। लेकिन खुदा का काम तो जारी रहेगा। हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। तो बेटी को जब बाप ने वार्निंग दे दी, तो कलाम के अंदर जो लिखा है मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, आप फिर सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक की जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत में पहुंची है। ये नबूवती कलाम है। अगर बेटी हाथ खींच लेती तो बेटी भी मरती, बाप भी मरता, शायद कौम का भी बहुत सारा नुकसान जो है बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और अपने बाप से पैगाम भेज दिया, कहने लगी, है बाप सुन। तब अख्तर ने मर्दी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया, जा और सुसे में जितने यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। हालेलुया, ऐलान भी किया है कि तुसी सारे के लिए रोजा रखो मेरे लिए। कभी क्या है तो देखो, किसी को कहो कि क्या करो, मेरे लिए रोजा रखो, वो हिल जाएगा, वो कांप जाएगा। जब आप कहेंगे किसी को मेरे लिए रोजा रखो, क्या है, क्यों, क्या बात है, मैं आपके लिए क्यों रोजा रखूं? कभी आजमा के तो देखो। अगर नहीं कहा तो फिर कहो। यही आवाज मुझे अमेरिका से आई, अंकल जी मेरे लिए रोजा रखो। मैं भी कांप गया, ये क्या बात है, मेरे लिए रोजा रखो। कहने लगी कि आप मेरे लिए रोजा रखो, मैं अपने भाइयों को भी फोन करूंगी, वो भी मेरे लिए रोजा रखे। मैं क्या, फिर अपनी सहेलियों ने भी किया, फिर अपनी सहेलियों को भी क्या, अपने मिलने रिश्ते नातों को भी क्या है। आज तक मैं पढ़ कि जब सबको उसे रोजे के लिए कहा, तो मैं कहता हूं कि उस मुल्क के अंदर 127 सूबे थे। पाकिस्तान में तो मैंने 4 सूबे, लेकिन 127 सूबे पर वो हुकूमत थी। तो आप देखिए कि कितने लोग उनके साथ रोजे के अंदर खड़े हो गए। इतनी दुहाई मच गई इस मार्ग के अंदर, इतने लोग रोजा रख के दुआ में ठहरे, खाक में बैठ गए और रात में बैठ गए। किसके लिए? आस्था के लिए, क्योंकि यहाँ ऐलान आस्था ने किया। कभी आज भी आज तक कभी ऐलान करके तो देखे उनके पाकिस्तान के अंदर होता ही है, कैसी तब्दीली आती है। जो इस मुल्क के अंदर जो तब्दीली चाहिए, अगर आज तक जैसा रोजा रखा जाए तो बेटियां पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ला सकती हैं, और बेटियां पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली ला सकती हैं दुआ, कलाम और रोजे के वसीले से। घर तो दूर की बात, पूरे मुल्क का निजाम तब्दील हो सकता है, तारीख तब्दील हो सकती है रोजे के वसीले से, दुआ के वसीले से। और तब अख्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मर्दगी ने रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। हालेलुया। उस मुल्क के अंदर मैं कहता हूँ कि बिनाई भी आ गई, लोगों की अक्खा खुल गई।
जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि जहान की आंखों ने उन्हें अंधा कर दिया है। उस पूरे मुल्क की आंखें खोल गई, उन्होंने वो नजारा देख लिया। तो 3 दिन का रोजा रखा आफ्तर ने, और बड़ी तब्दीली आई और पूरे मुल्क के अंदर फतह होने की हुई और मौका आस्तर बन गया। आफ्तर से आफ्तर मलका बन गई। हालेलुया। ये दुआ और रोजे के वसीले से एक बेटी, मैं कहनी है बेटे नहीं कर सकते, बेटियां नहीं कर सकती ये काम। बेटियां नहीं अगर जुड़ जाए तो पिलर भी हिला सकती है। मैं चाहता हूं, मेरे पास इसी बिल्कुल ऐसे ही एक और गवाही है। मैं चाहता हूं कि आज वो गवाही भी मैं आपके पास सामने शेयर कर सकूं। तो खुदा ने जैसा आज बताया कि पिराई और रिहाई, ये रिहाई। एक और मेरी बेटी जो पिछले माह के आखिर महीने के आखिर में वो आती है, रोशनी और उसका बेटा यहाँ पर। जुमेरात को उनका मुझे फोन आया, कहने लगी बाबू जी, मैंने कहा हाँ जी। कहने लगी कि जब से मैं चर्च में आई, मैं लगातार बाइबल घंटों घंटों में पढ़ती हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है। ये पहले हमने रिहाई देखी बाप और बेटी ने, यहाँ एक माँ और बेटी ने दोनों खड़े हुए। पहले हम दोनों कलाम घंटों घंटों पढ़ते हैं। और जुमेरात को मैंने नहमिया की किताब को ख़त्म किया और फिर आसर की किताब को मैंने पढ़ा। मैंने फिर पढ़ा, पढ़ के फिर मैंने दोनों को बार बार पढ़ा। कहने लगी कि दोपहर के टाइम मैं जब आराम कर रही थी तो मैंने ख्वाब देखा, रोया के अंदर। यानी मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी ऐसी दुआएं नहीं की, मैंने इतनी लंबा कलाम कभी नहीं पढ़ा जो इन माह के अंदर 3-4 में मैंने पढ़ना शुरू किया। कहने लगी कि मैं देखती हूँ तो खुदा मुझे कहता है कि देख, आसर ने रोजा रखा तो उसके वसीले से इसराइल आज़ाद हुआ, बल्कि मुल्क भी आज़ाद हो गया। अगर तू रोजा रखे तो मैं तेरे घराने को भी रिहाई दूंगा। हालेलुया। कहने लगी मैं झट उठकर बैठ गई। मैंने कहा खुदा, क्या तू मेरे खानदान को रिहाई देगा? कहता हाँ, मैं तेरे पूरे कबीले को रिहाई करने वाला हूँ अगर तू रोजा रखे, रख कर दुआ करे। तो फिर मुझे फोन किया, कहने लगी कि ये मामला है, मैंने देखा तो हम क्या करें, हम क्या करें? मैंने कहा आपने कहाँ से पढ़ा? कहने लगी नहमिया से पढ़ा मैंने, और फिर आस्तर में पढ़ा, और उसने कहा जैसे आस्तर ने किया और तू भी कर। तो मैंने कहा उन्हें क्या तू भी कर? तो तू कर। जब खुदा तेरे से कलाम कर रहा है, खुदा चाहता है तेरे खानदान को रिहाई देने के लिए, तो फिर तो मैंने कहा उसने क्या किया? मैंने कहा उसने इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया। इसी तरह तू भी कर। आइए मैं कलाम मुक़द्दस में और थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। योएल योवेल का 2 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 17 तक मैं पढ़ूंगा कलाम मुक़द्दस में से। कलाम में यूं लिखा है, योवेल 2 बाब 15 से 17। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफिल
फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खुलबत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदावंद के खादम जोड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिराज की तौहीन ना होने दे। ये है महफिल। महफिल कौन सी? सयून में नरसिंगा फूंक। यानी का देखो पढ़ो रखे चाह आस्तर ने नरसिंगा फूंका, तू भी फूंक। अपने भाइयों को गवाही दे, अपनी बहनों को गवाही दे, अपने रिश्ते नाते बहन भाई अजीज में गवाही दे, अपने ऑफिस में गवाही दे। जो लोग तुझे प्यार करते हैं उन्हें निकाल कर उनको क्या कि मेरे लिए रोजा रखो। ये जुर्रत की बात है जो आस्तर के अंदर जुर्रत थी। मैं आपको भी कहता हूं कि आप जुर्रत करें, आप अपने प्यारों को कहें कि हमारे लिए रोजा रखो। ये दोनों बेटियों ने तो मैंने जुर्रत दी, मैंने नहीं आप कहो, आप सबसे कहो कि रोजा रखें। यहां जब हम पढ़ते हैं लिखा है कैसे खुशियां कैसे मिलती हैं, और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फराहम करो। कहने लगी कि हम चाहते हैं कि अब महफिल फराहम करें। कौन सी डेट रखें? उन्होंने कहा कि क्रिसमस के आखिरी वक्त जा रहे हैं, आखिरी महीना 11वां 12वें के अंदर आप दाखिल होंगे। खुशियां ली, रोजा रखो और पहले वीक के अंदर आप कोई डेट रख लो और ऐलान करो, ताकि आपके जितने चीज प्यार करने वाले हैं आप उनको अपने घर के अंदर बुलाओ। वो क्या लगे कि जैसा कहा गया है हम वैसा ही करेंगे। मेरा बेटा भी कहता है कि हम वैसा ही करेंगे, और उन्होंने डेट रखी है कि हम महफिल को फराहम करेंगे। वो कहता है तुम लोगों को जमा करो, मुकद्दस जमात बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। बच्चे न बोल दो। दूल्हा कोठरी से और दुल्हन अपने खुलवत खाना से निकल कर आए। अभी एक मुझे थोड़े दिनों में लेटर आया है पादरी का, वसीमुल्लाह खोकर उन्होंने इन्विटेशन भेजा कि हम 12वें महीने के अंदर एक डेट रखना चाहते हैं और हम नाइट प्रेयर करना चाहते हैं। तो खातों को बुलाया ताकि इस साल के एंड पर और आने वाले साल की खुशियों के लिए हम नाइट प्रेयर करें। ये तजर्बे हैं जब लोग अपनी जिंदगी में करते हैं तो फिर बिनाई भी पाते हैं, पता भी पाते हैं, रहाई भी पाते हैं, शादमानी भी पाते हैं, खुशी भी पाते हैं, इज्जत भी होता है। तो दुश्मना के दौड़ लग जाती है, उनकी थोड़े लगती है, वो भागते हैं। आप उन्हें भागता हुआ देखते हो और कहते शुक्र है खुदा कि तूने मुझे फतह से बढ़कर गलबा दिया। आइए कलाम मुकद्दस में हम दोबारा फिर अब जाएंगे नहमिया के खत के अंदर। और नहमिया ने क्या किया? आस्तर ने देखा, आस्तर का हमने देखा कि आस्तर ने किस तरह कदम उठाया, क्योंकि जो लोग जानते हैं, खातम जानते थे कि मटकों के अंदर क्या भरा हुआ है। जो खुदा के लोग हैं वो भी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है। खातम भी जानते हैं कितनी बरकत है, कितना मजा है, कितनी हुजूरी है, कितना मैं कलाम पढ़ता हूं, कितना मैं दुआ करता हूं। वो जानते हैं कितने मैं रोजे रखता हूं, वो सब जानते हैं। कितना मैं खुदा को वक्त देता हूं, कितनी मैं शुक्रगुजारी देता हूं, कितना मैं हदिया देता हूं, कितनी मैं खुदा के हुजूर में दाई की देता हूं, वो सब जानते हैं। हर एक को पता है। यहां देखिए ये तजर्बा जो नहमिया भी जानता है, नहमिया भी एक तजर्बा जो है वो बयान करता है। नहमिया उसका पहला बाब 3 से लेकर
11 आयत तक मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस से पढ़ूंगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, बरकत मिलेगी आपको। कलाम में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस शुबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, आए खुदावंद, आसमान के खुदा अजीम महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ। और बनी इसराइल की खुदाओं को जो हमने तेरे खिलाफ कही मान लेता हूँ, और तेरे खिलाफ बड़ी बदी की और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मदद करता हूँ कि अपने कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमान नहीं करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो तुम्हारे अवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कौम कभी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साखी था। हालेलुया। नहमिया की गवाही कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, उसे साफ बताया इसके अंदर कि मैं कलाम को पढ़ने वाला है। खुदा को वर्ष पढ़ के दे रहा है, खुदा को हवाले दे रहा है। खुदा यहाँ ये लिखा, यहाँ लिखा, मैंने तेरे कलाम को वफादारी के साथ पढ़ा। पढ़ने के बावजूद भी वो इस बात का इकरार कर रहे हैं, खुदा मैंने कलाम, मैंने शरीयत पढ़ी, मेरी कौम ने शरीयत को पढ़ा, मेरे बेटों ने बेटियों ने शरीयत को पढ़ा, इसको सुना। मैं इकरार करता हूँ इस बात के लिए। मैं भी इकरार करता हूँ कि मैंने भी इस कलाम को पढ़ा, मैं कलाम को पढ़ता हूँ, मेरी बेटियां बेटे भी इस कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ वो इकरार कर रहे हैं, पढ़ते हुए भी अमल नहीं किया, पढ़ते हुए अमल नहीं किया। इकरार करने की क्या है? नहमिया नबी होते हुए इस बात का इकरार करता है कि हम पढ़ते हैं पर अमल नहीं करते, सुनते हैं पर अमल नहीं करते। लेकिन आज जब फसील टूट गई, खुदा का घर बर्बाद हो गया, तबाही आ गई, लोग सड़कों पे आ गए, लोग गलियों में आ गए, गरीबी तंगी बदहाली हो गई, कौमों के अंदर इज्जत बवाल होनी शुरू हो गई, लोग आपकी जवान बेटियां उठाकर ले जाते और मुल्क क्या करते हैं, मजहब तब्दील कर देते हैं। तो यहां पर वो लागू है कि हमें जरूर है हम कलाम, दुआ और रोजे के वसीले से रिहाई पाए। हालेलुया। ये रिहाई है। तभी नहमिया को भी मालूम हुआ कि आज इस हमें क्या करना चाहिए, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें भी क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे लीडर खड़े हुए हैं कि हमें
پاکستان کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں, ہمیں مسیحوں کی اپنے بہت مدد کی ہے, مسیحوں کو بہت پیسہ دیا ہے. جب 15 اپریل کو یہاں پر تباہی ہوئی تو بہت ساری اینجیو, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گھر, ان کو پیسہ, ان کو کاروبار, ان کو بزنس دیا, لیکن رہائی نہ دے سکے. کیونکہ رہائی تو دعا, کلام اور روزے کے وسیلے سے ہی ہے جو کلام کے اندر لکھی ہے. آج رہائی تو اسی کے وسیلے سے ہے, اور رہائی کے لیے اقرار ضروری ہے. نہمیا نے اقرار کیا, اور اقرار سے پہلے دیکھیے اس کی کیا حالت تھی. حالت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نبی کی کیا حالت تھی. وہ کہنے لگا کہ جب مجھے پتہ چلا, اس بارے میں مجھے علم ہوا کہ خدا کا گھر برباد, لوگ برباد, کلیسیا برباد, کلیسیوں کے اندر بربادی, غریبی, غربت, تنگی, بدحالی ہے, تو کہنے لگا کئی دنوں تک بیٹھ کر میں روتا رہا ہے. سنت بعد کئی دنوں تک روتا رہا ہے. میں بھی جب لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم پڑتا تو کئی بار میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے سوچتا رہا کہ خدا میں کیا کروں. ایک ہی آواز آتی ہے, دعا کر. ایک ہی آواز کہ دعا کر, کیونکہ دعا کے وسیلے سے ہی ہم فتح پا سکتے ہیں. تو کہنے لگا روتا رہا بیٹھ کر, اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا, اور روزہ رکھا, اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. ہاللیلویا. کہ حضور آسمان دے خدا دے حضور دعا کی تھی. اور کوئی نام سارے کو بخشے نہیں ہے, یسوع نام وغیرہ کوئی نہ نہیں چھے. کہنے لگا دعا کی اور کہا اے خداون آسمان کے خدائے عظیم مہیب, جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں, عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے, میں تیری منت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ منت کیسے کریں گے؟ رونا ہی پڑے گا. میری منت میں تیری کارنامہ نہیں چھوڑا, میں تیری منت کرنا. تکلیف کس کی آگے, گھٹنوں کے بعد آنسو کی ناکدیاں لکیرہ کرنی ہے, میں تو بھی کاٹ چھوڑا. میں دیکھ یہاں تک کہتا ہوں اگر ضرورت پڑے خدا کے حضور کہو, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے گھر اور گھرانوں کے لیے, رہائی کے لیے, فتح کے لیے. کیوں لوگ مارتے, کیوں لوگ کرتے ہیں, کیوں لوگ ظلم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دہائی دینے سے ہم ڈرتے ہیں کہ دہائی دینے میں شرم آئے گی. لوگ کی کہنا ہے آتے دلی ہیں کھلے عام آسر, انہیں کہ جاؤ ساری رکھو. نہمیا نے کہا ساری نکلو باہر, سب آجو سڑکوں تھے, اگر سڑکاں تھے جانا پہلے چلے جاؤں. کہنے لگا کیا کہ تو کہاں لگا اور اپنی آنکھیں کھول رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں. کہنے ان کا لگا میں دعا کروں گا, آپ لوگ دعا کریں, کلیسیا دعا کرے, یونا بعد دعا کرے, پورا ملک گلیوں شہر کوچے پاکستان کی رہائی کے لیے دعا کرے. تو ایک تبدیلی آ رہی تھی, پھر تبدیلی آ سکتی ہے, حکومتیں بدل سکتی ہے. جب ابراہم لنکن کو امریکہ کی حکومت دی گئی تو اس نے سب سے پہلے یہی کیا, اپنی پوری کیبنٹ کو بنایا, اپنے وزیروں کو مشیروں کو اس نے بنایا, اپنے ایم پی ایم این اے سب کو اس نے بنایا, اور اس نے کہا روزہ رکھو. سب سے پہلے روزہ رکھو, اور پورے امریکہ کی کیبنٹ نے روزہ رکھا, اور آج اس روزے کے وسیلے سے سپر پاور ہے دنیا کا. بدیوں دے تو یہ گواہی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی سپر پاور ہے. سپر پاور یہ ہے دعا, کلام اور روزے کے وسیلے سے. اگر ہم بھی اپنے گھروں کے اندر سپر پاور چاہتے ہیں, اس مسیحوں کو چاہتے ہیں, موفق القدرت چاہتے ہیں, قوت چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی دعا, کلام اور روزے میں جانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. یہ مسیح بنیاد ہے جو خدا جس مسیح نے ہمیں دی ہے. اور کہنے لگا محنت کرتا ہوں, اور ساتھ اقرار کیا, کہنے لگا کہ اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے خلاف کی مان لیتا ہوں,
اور میں اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا. کہنا سی دونوں گناہگار, کلیسیا بھی گناہگار, عالم بھی کہنا سارے نے گناہ کیا, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. یہ ہے جس سے رہائی اور فتح حاصل کی ہے. رہائی فتح اسی کے اندر ہے. اور میں اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا. اب ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی اور ان حکموں اور آئین اور فرمان کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. اور نبی کہہ رہے ہیں موسیٰ کے ذریعے جو دیے ہم نے نہیں مانا, بڑی معجزہ کی دیا. اب کہنے لگا کہ میں تیری محنت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا. کہنے لگا خدا میں تیرے قول دے آتے نہیں, تیرا کلام بھی آتا ہے, پر میں تیرے یاد کرانا چاہتا. اچھا ہے, کلام کو یاد کیا کرے, حفظ کرے, یاد رکھے, ورسز کو یاد رکھے, حصے کلام کی یاد رکھے. جب ضرورت پڑے تو پھر پھول کر ہم خدا کو بھی یاد کرائیں. خدا میں تیرا وعدہ ہے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے, ان وعدوں کو یاد دلایا کرو. یہ بھی وعدہ خدا کو یاد دلا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر دیکھ دے گا کلے کو آپ کو یاد رکھیں, مار سکتے ہیں, آپ کے دشمن گرا سکتے ہیں, لیکن جب ایک مٹھ گھرانا ایک مٹھ ہوگا تو پھر انہیں کوئی بھی نہیں گرا سکتا. یاد رکھیں. کہنے لگا تتر بتر کر دوں گا, برباد ہو جائیں گے. کہنے لگا پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو تمہارا آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہو, میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. وہ تو تیرے بندہ اور تیرے لوگ ہیں جو تو نے بڑی بڑی قدرت اور کبھی ہاتھ سے چھڑایا ہے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعاؤں پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. میں دو بادشاہ کا ساکھی ہوں. میں نے کہا میں تیرے نوکر ہوں لیکن تو تیرے حاکم ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خداوندوں کا خدا ہے. آج جب میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا کہ وہ میری سنے. ہاللیلویا. کس کے وسیلے سے سنا؟ کلام, دعا اور روزے کے وسیلے سے نہمیہ نے خدا کے گھر کو بنایا. کلام, دعا اور روزے کے وسیلے سے آسر خود بھی بچی, اس نے اپنے گھرانے کو بھی بچایا اور اس نے اپنی پوری قوم کو بچایا. میں آپ کو اس سال کے آخر کے لیے ایک میسیج ہے خداوند کی طرف سے کہ دیکھو یہ آخری چل رہا ہے. میں نے آپ کو گواہیاں دی گئی اس ماہ کے آخر کے اندر 2 بیٹیوں نے گواہی دی اور خدا نے کو بھی پیغام دیا کہ جو میں نہمیہ کی زندگی میں کر سکتا ہوں وہ تیری زندگی میں بھی کر سکتا ہوں. جو میں نے آسر کے لیے کیا وہ میں تیرے لیے بھی کیا. اس سال کے آخر کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے میسیج میں شیئر کروں گا. ضرور آج ٹائم لگے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ساتھ بینائی اور رہائی کو لے کر جائیں. ہاللیلویا. لے کر جائیں اور آنے والے سنے بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ آپ یہاں پر لوٹ کر آنے والے ہیں. لوکا کی انجیل اور اس کے 13 باب اور اس کی 6 آیتیں خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کی. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈالو, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رکھے. اس نے جواب میں کہا
ऐ खुदावंद इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला को खाद डालूं, अगर आगे तो भला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। मेरा आपके लिए पैगाम है कि जो ये साल चल रहा है, लास्ट मंथ, आने वाला साल जो है आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है। हमें एंट्री जो है चर्च में भी हमें करण करेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, यहाँ पर आप करेंगे, सब मिलकर इकट्ठे होंगे। और आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप अपने अपने घरों के अंदर भी रूहानी महफिल रखें, रोज़ा महफिल को फराहम करें, ताकि आने वाला जो साल है आपके लिए भिलाई और रिहाई और शफा लेकर आए। आमीन।